पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदाम्। सर्वालंकार आप है ना, आप दीर्घाक्षर नहीं, सर्वालंकार, सर्वा वो आ मात्रा आते हैं। सर्वालङ्कारयुक्तां सततम् अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितक्षणां सशरचापाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। ॐ श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। एक बार प्रतिभा जी को एक रिंग कर सकते हैं निमिषा जी? यस मैम, मैं करती हूँ। यस। कितना तक हो गए? सदा सदा तुष्टा सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला. సో సదా తుష్ట దాకా అయింది. చిన్న రివైజ్ చేయగలరా? మ్యామ్. సో చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రియ. సో as the name itself or the nama mentions that arghya is offering of like what we say as in the form of the way in which that water is being offered as the arghya, and in the same way like it is said that whatever we have attained or we are as of what we have gained as a knowledge as gnana, in case like we are supposed to offer it to the goddess to see to it that our gnana is enhanced. So at whatever stage or whatever level of gnana we must have attained in our lifetime, so with that chaitanya tattva or with that kind of an awareness, if we say that this presence of this gnana is because of you and that I offer it to you as my complete having received blessings from you, and in that particular way if we are offering it to the goddess, like she sees to it that the ajnana is completely removed and she takes us towards the gnana marga, making us walk towards the path of gnana to achieve us to good and higher levels of attaining the gnana. So for that reason goddess is called as chaitanyarghya samaradhya chaitanya kusuma priya. And then again that this chaitanya kusuma priya is that in the same way, like if we also consider that we have that jnana kusuma, and then again in the same form we are offering it to the goddess, and then nothing but considering that whatsoever the kind of shakti which we have received or which we have attained, like it is offered to her, like in our whole and soul completely, like if we say that we offer in various forms and many ways when we worship, when we offer our prayers, so considering it in that particular way that we are offering our own complete jnana in the form of jnana kusuma tattva, and for that reason that is the way in which she expects that her devotees need to be. And if we offer our jnana whatsoever we have attained till that particular way, so then
she is going to bless her devotees or sadhakas even more in a very divine form to make them attain higher levels of jnana and make them walk towards the path of moksha. So for that reason, goddess Lalitamba is called as Chaitanyarghya Samaradhya Chaitanya Kusuma Priya. Sadodita Sadatushta Tarunaditya Patala. Sada, as we know the name or that particular word in the Nama, Sada is always, ever, forever. Sada, Sadodita. Dita means that to glow, as like it is glowing in a very prakashamana way. Udita, Huh. udita, sada Sadodita. udita. Huh. So again, this term can be split as Sada Udita. Udita is like she's always glowing. So hence, for that reason, she's also considered as a Chaitanya Rupini. And then in that way, the way her glowing or her radiance is compared in the previous namas also to various different forms, like the glow with which it is compared to the glow which emits from a thousand sun radiance, and then to various different form of jewels also in which it is compared to the flowers and many other things which are considered as the most best forms in which there is a glow of it. So that is compared to the goddess in which she is ever glowing. And that Chaitanya Tattva which exists in her, which is emitting that kind of a radiance. For that particular reason, goddess is called as Chaitanya Rupini. Sada Tushta. And as we know that Tushta is also having a meaning that with whatever attainment a person has received, there is a kind of contentment and a satisfaction for the person, where that is the one which serves as a benchmark for them to attain that Ananda Tattva. So or otherwise always we also find that dissatisfaction leads to a kind of greed and that want which completely takes a person into a whole of that kind of things where coming to the bottom line of it that the root cause of sadness or all kinds of sorrows is the desire which again goes into unmeasurable and uncountable ways. So for that not to be there and for that contentment or for that attainment of that satisfaction, where once the jnana whatsoever the person has attained is offered to the goddess in a very blissful form or in a very sincere way, that particular reason, goddess is also called as she grants her sadhakas or her devotees with that kind of an ananda tattva. Like we can see that kind of a reflection in the person. That if the person is contented and then feels that kind of a satisfaction on being very devoted and then just doing that sadhana in a very divine form. So that is where is the whole of the aspect lies in being getting that happiness in life. So ultimately, anything done in any great way or smaller ways is to see to, or for any person, it is that they want to feel happy. So, if provided like on doing this in a very divine form and in a very pure way, if that contentment is leading us towards that kind of an happiness, that which is leading us towards that Ananda Tattva, then I think that is the ultimate form or that ultimate way of living. And for that reason, goddess is called as Sadodita Sadatushta Tarunaditya Patala. Ma'am. तरुणादित्य पाटल तरुणा तरुणा मतलब वो हम बोलते हैं तरुण प्राय मतलब यवन मतलब यंग एज ऐसा बोल सकते हैं कुछ वो कह सकते हैं यंग एज यवन प्राय ऐसा बोलते हैं ना वो तरुणा ऐसा मतलब वो पक्व दशा बोलते हैं ना ऐसा इसको बोलते हैं तरुण वो तरुण आदित्य पाटल आदित्य मतलब सन है ना सूर्य वो सूर्य कब वो उसका ये समय आते हैं वो मध्याह्न समय पे वो हम सूर्य को देखते थे कैसे दिखते हैं वो पाटला पाटला मतलब एक कलर है वो कलर कैसे होते हैं रेड और सफेद कलर मिक्स होते हैं ना ऐसा मिक्स होके होते हैं मॉर्निंग टाइम आप देखें तो कौन सा कलर में होते हैं थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर पे आके फिर वैसा रेडिश होके पूरा रेडिश होके उसमें मध्याह्न समय आफ्टरनून पे आते हैं
वो सफेद कलर मिक्स हो जाते हैं। अब देख सकते तो वो सफेद कलर मिक्स हो जाते हैं। दो कलर, ये कलर को बोलते हैं पाटला वर्ण बोलते। पाटला वर्ण मतलब वो रेड कलर और व्हाइट कलर का मिक्सड कलर है। वो टाइम पे ऐसा होते हैं। वो शास्त्र में लिखते हैं सभी कलर्स का एक एक इम्पोर्टेंस होते हैं। ग्रीन कलर का एक इम्पोर्टेंस होते हैं, ब्लू कलर का एक इम्पोर्टेंस होते हैं, रेड कलर का, येलो कलर का, ऐसा वो वर्ण को इम्पोर्टेंस होते हैं। हम कौन सा कलर पे ध्यान करना है, आप देख सकते तो हो राजश्यामला कौन सा कलर में होते हैं, और डार्क ग्रीन और ब्लू मिक्स होके एक कलर होते हैं राजश्यामला। आप फोटो देखे तो आपको गूगल में श्यामल वर्ण बोलते हैं ना, वो श्यामल वर्ण, वो श्यामल वर्ण वो कृष्ण जी राम को भी होते हैं। और काली होते हैं, काला वर्ण होते हैं, और काला भैरव भी काला वर्ण होते हैं। ऐसा एक एक वर्ण से देवी देवता होते हैं। वो वर्ण हम ध्यान करें तो वो हमको वो रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा ये पाटल वर्ण मतलब रेड और व्हाइट मिक्सड होते हैं। आप देख सकते तो मध्याह्न समय वो होते हैं पूरा वो तरुण का टाइम। वो बोलते हैं ప్రశ్న గారు ఇది చెప్తారు కదా, తరుణం మించిపోతుంది అంటారు. అంటే మనకున్న సమయం కరిగిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మన యవ్వనం కరిగిపోతుంది అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఆ ఏజ్ ఒక ఏజ్ అన్నమాట. అలానే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సమయం ఉంటుంది. అంటే అది కరెక్ట్ టైం అన్నమాట. అది ఒక్కసారి చెప్పరాది. So this particular formation which happens with the radiance or the glowing of the sun right from the morning, in that kind in which it is from that fireball of orangish to the form it changes. By mid-afternoon, it combines with the kind of a white color in the form of at one particular wavelength. Also, there are different kinds of scientifically also where the sun forms the color formation with the different wavelength for different colors. So in that particular combination where it leads to a kind of glow which is compared to the youthness or that kind for anyone, that one must have attained their youth to be very energetic and to have attained their full potential at that particular age where all everyone in the nature feels that there is no end of their energy, or that the way in which they exist is very unique to one's own self. So that exists only for a short duration of time or for a small period of time. So after that again it takes another different form. So that particular duration or that temporary or that particular phase in which it is combining with the white color radiance and causing that glow which exists for some period of time or only for some time in a day, in each day's time where it is bright though, but still when it combines with that white color, the whole brightness of it is not that it's not reddish or it is not orangish in color, but that which emits with the radiance in combination with that white color is compared to the highest level of energy which is possessed by anyone in their young age. So or that way which where we consider it as that most uh, potential or the most highest phase of energy existing in anyone's life as the very youthful phase. So goddess radiance at that point of time is compared in that particular way. हाँ, ये हम भी बोलते हैं ना, ये इसको वेस्ट करना नहीं, नहीं वेस्ट करना है, सब बोलते हैं ना हम। वो एज वो उसको बोलते हैं तरुण। वो तरुण ऐसा वो समय होते हैं इसको हम यूज करना है। ऐसा ही मध्याह्न समय पे वो आदित्य वो वर्ण पे होते हैं ना, ऐसा वो वर्ण को हम वो आदित्य को हम वो आदित्य में हम ललिता देवी को देख के इसको उपासना करने। ऐसा माँ भी कभी भी देख लीजिए ऐसा एनर्जीज पे होते हैं माँ, उसका एनर्जीज ऐसा होते हैं, एंगेजमेंट कैसे होते हैं। इसलिए वो षोडश
वो षोडश बोलते हैं ना, वो षोडश मतलब 16 इयर्स पे उसका एज रुक गया है। वो करेक्ट एज है, वो यंग एज में तभी वो यवन दश में तभी वो हम पैदा वो तब होते हैं ना, वो एज में वो रुक गए हैं, इसलिए उसका एनर्जी लेवल्स ज्यादा होते हैं, वो उसका एज नहीं बढ़ते। मगर हम मनुष्य है ना, मनुष्य को क्या होता है, वृद्धापा आता है, मगर वो शरीर को नहीं है। हम कहाँ रुकना है, हमारा मन को रुकना है। मन को वो 16 इयर्स एज पे रुकना है, क्योंकि अ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं हमारा एज 16 इयर्स है, 18 इयर्स है, इधर रुक गए, इसलिए हम ये एक गलत काम करते थे, मतलब उसका काम वांछा ज्यादा होते हैं, इतना एज बढ़ते तो वो ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं है। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, वो हम उधर तक हम रुक हमारा मन को रुकाते तो क्या होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स ऐसा ही होते हैं। हम हमारा शरीर को इतना एज आते तो भी हमारे एनर्जी लेवल्स ज्यादा होते हैं ना, तब हम ज्यादा काम कर सकते हैं। हम क्रिएटिविटी से मतलब क्रिएटिव थॉट्स भी हमको अंदर से ऐसा आते रहते हैं। आप देख लीजिए कुछ लोग होते हैं उसका एज 80 इयर्स होते, 90 इयर्स होते, मगर वो इतने एक्टिव होते क्योंकि उसका मन का एज होते हैं, वो रुकते हैं। ये होना चाहिए। ये करुणादित्य पाठक मतलब मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, ऐसा भावना करना है। वो वो आदित्य ऐसा होता है, ऐसा ही हमारा मन भी ऐसा ये समय पे रुकना है, इसलिए इसको ऐसा ध्यान करना है। हम माँ को भी वो तरुणादित्य वो मध्याह्न समय में सूर्य का वर्ण इतना तेज होते हैं, आप देख सकते थे। वो रेडिश पे वाइट मतलब इतना ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को हम सफेद वर्ण से हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा ये मिक्स होके इतना तेज होते हैं, आप देखते तो ऐसा वो यवन पे भी सबका वो थॉट्स और मन तेज होते हैं ना, ऐसा तेज होना मतलब ऐसा एक्टिव होना चाहिए। माँ को ऐसा हम ये वर्ण पे हम वो तरुणादित्य पाटला में वो सूर्य का वर्ण कैसे होते हैं, वो वर्ण पे माँ को हम ध्यान करना है। ज्यादा तक बोलते हैं त्रिकाल संध्या बोलते हैं ना, वो मध्याह्न भी मध्याह्न संध्या बोलते हैं। 3 संध्या होते हैं ना, त्रिकाल संध्या। उदय संध्या मॉर्निंग आते हैं, वो रात जाके वो उदय काल आते हैं ना, वो गैप होते हैं, वो उदय संध्या। मध्याह्न वो उदय काल जाके मध्याह्न समय आते हैं, दोनों के वो जाके वो आते हैं ना, वो टाइम थोड़ा होते हैं, इसको बोलते हैं मध्याह्न संध्या। और सायं संध्या वो मध्याह्न काल जाके रात का समय आते रहते हैं, तब ये दोनों समय मिक्स हो जाते हैं ना, इसको सायं संध्या बोलते हैं। ऐसे त्रिकाल संध्या होते हैं। इस मध्याह्न काल में इतना तेज होते हैं ना सूर्य, ऐसा ऐसा माँ का भी ये तेज उसका एनर्जी लेवल्स इतना तेज होते हैं ना, ऐसा माँ को हम ध्यान कर दे तो वो तेजस हमारा मन पे भी हमारा शरीर पे भी आते हैं, तब हम भी ऐसा एक्टिव हो जाते हैं। यही तरुण आदित्य पाटला। और पाटला मतलब वो लाल वर्ण और सफेद वर्ण का मिक्स है, इतना तेज। लाल वर्ण भी तेज होते हैं ना, सफेद वर्ण मतलब ब्राइटनेस, वो ब्राइटनेस होते हैं, वो इतना तेज होते हैं। ऐसा हम ध्यान करना है। दक्षिणा दक्षिणाराध्य मैं एक बार बोला है, वो दक्षिणा, दक्षिणा मतलब समर्थता, वो समर्थता होते हैं ना, वो दक्षा बोलते हैं, वो समर्थता, वो समर्थता होना चाहिए, वो इसलिए दक्षिणामूर्ति रूपिणी हम बोले। वो दक्षिणामूर्ति शिव जी को दक्षिणामूर्ति बोलते हैं, और ये माँ दक्षिणामूर्ति रूपिणी है, मतलब वो पूरा समर्थता का रूप है। मतलब वो उसके पास इतना समर्थता होते है, वो पूरी समर्थता का रूप है।
ऐसा माँ को और शिव जी को हम दक्षिणामूर्ति और दक्षिणामूर्ति रूपिणी जैसे दोनों को हम उपासना करते, तो हम भी ऐसा दक्षत मतलब हमारा मन भी ऐसा दक्षत का वो हमारा मन पे आते हैं। इसलिए वो दक्षत का रूप क्या है, वो दक्षिणा का रूप वो है मेधाम प्रज्ञाम, मतलब ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये। ऐसा करके वो मह्यम मह्यम मेधाम प्रज्ञाम, मेधाम मतलब वो हमारा अंदर से वो इंटेलिजेंस होते हैं न, वो मेधाम प्रज्ञाम, वो प्रज्ञा होते हैं हमारा अंदर से, वो प्रज्ञा होते हैं ना, वो वो रूप होते हैं। वो मेधाम से प्रज्ञा से हम कुछ काम करते तो वो काम अच्छे हो जाते हैं, 100% और समर्थता से हो जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, हमारा अंदर से वो मेधा और प्रज्ञा होना चाहिए, उसको बोलते हैं दक्षिणा। वो गुरु, इसलिए दक्षिणामूर्ति को परम गुरु मानते हैं, वो परम गुरु है। इसलिए हम दक्षिणामूर्ति का वो श्लोक या स्तोत्र पढ़ते तो, नहीं तो दक्षिणामूर्ति का एक फोटो रख के वो कैसे रखना है, नॉर्थ साइड रखना है, वो दक्षिण को देखना है, दक्षिण दिशा को वो देखना है। ऐसा वो हम रखते तो क्या होता है, हमारा घर पे बच्चे होते हैं, वो बच्चे ऐसा फोटो को 1 मिनट या 2 मिनट्स ऐसा देखते तो भी उसका अनुग्रह आते हैं, वो दक्षिणामूर्ति का अनुग्रह आते हैं, मतलब वो हमारा अंदर से वो दक्षता बढ़ते है। ये इसको बोलते दक्षिणा। और दक्षिणा गुरु कैसे होना है, गुरु का परम लक्षण क्या है, समर्थता होना है। वो समर्थता कैसे होना है, दुख नाशन करने के लिए वो समर्थता होते हैं ना, वो समर्थता होना है। और हम बुरा काम करने के लिए समर्थता नहीं, हमारा अंदर से क्या करते तो हम हमारा अंदर से दुख नाशन होते हैं, वो दुख नाशन करने के लिए वो गुरु देना है, वो गुरु को समर्थता होना है, मतलब वो हमारा अंदर से अज्ञान को मिटाने का वो दक्षता होना है। ऐसा गुरु को हम सद्गुरु बोल सकते हैं, वो गुरु का लक्षण है। वो इसलिए वो दक्षिणामूर्ति परम गुरु है। दक्षिणामूर्ति और दत्तात्रेय वो सभी परम गुरु है। माँ ललिता माँ परम गुरु है, शिव जी परम गुरु है, मतलब वो दक्षिणामूर्ति रूप में होते हैं। इसलिए हम बाहर का गुरु को भी हम मतलब हम किसी गुरु के पास जाते तो कैसे होना चाहिए हमको मालूम होता है। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई आदमी के मतलब वो गुरु समझ के वो ऐसा हम जाते हैं ना, ऐसा गुरु के पास जाते तो हमको शांति मिलना चाहिए, हमारा मन को शांति मिलते तो हम कह सकते हैं वो गुरु के पास जा सकते हैं। मगर कुछ कुछ गुरु मान के जाति तो कैसे होते हैं कुछ लोग के, वो हमारा मन से कुछ अजीब सा लगते हैं, तब हम इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा हम ये लक्षण होना चाहिए, मतलब हमारा मन पे वो चेंजेस होना चाहिए। हमारा मन पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहे हैं, हमारा मन का अंदर से हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा होते तो हम मान सकते हैं वो अच्छे गुरु है। ये गुरु का लक्षण, वो गुरु का लक्षण दुख नाशन करना है। और दुख नाशन करने के लिए वो ज्ञान देना, वो ज्ञान वो कैसे होना, वो ब्रह्म ज्ञान। माँ खुद ही वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूपिणी है, वो है वो दक्षिणा। इसलिए वो माँ दक्षिणा दक्षिणा बोल सकते हैं। ऐसा वो सृष्टि स्थिति लय तीनों कर सकते हैं, वो दक्षिणा। ऐसा ये हम इसलिए हम माँ को वो दक्षिणा मूर्ति रूपिणी मान के हम आराधना करना है। ऐसे शिव जी को दक्षिणामूर्ति समझना है। वो दक्षिणामूर्ति ये है मेधो दक्षिणामूर्ति बोलते हैं ना शिव जी को।
निमिषा जी एक बार गूगल में वो दक्षिणामूर्ति का फोटो एक बार आप ग्रुप में भेज दीजिए ना। वो यस मैम, दक्षिण प्लीज। हाँ, वो दक्षिणामूर्ति का रूप में हमको ज्ञान देते हैं। वो फोटो कैसे होते हैं? आप शिव जी का वो फोटो दक्षिणामूर्ति रूप में वो पूरा बनियान का ट्री होते, बनियान का ट्री का रूट से कैसे विस्तार होते हैं, ऐसा ज्ञान विस्तार होना चाहिए। तब इतना ज्ञान विस्तार होते हैं, हमारा अंदर से अज्ञान मिटते हैं ना, तब वो अज्ञान वो ज्ञान विस्तार से ही अज्ञान समूलन नाशन हो जाते हैं हमारा अंदर से। तब हमको दुख नाश हो जाते हैं हमारा अंदर से। और दक्षिणा आराध्य, वो दक्षिणा आराध्य कैसे धीरा धीरा समर्चिता जैसे ही मीनिंग है। वो खुद धैर्य होके वो इसको अर्चना करते हैं ना, ऐसा हम भी ऐसा दक्षता से इसको आराधना करना है। मतलब हम भी समर्थ होना है। इसलिए बोलते हैं समर्थ रामदास, वो शिवाजी का गुरु है। समर्थ रामदास वो मतलब वो उसका गुरु इतना समर्थ है। और एक स्वामी समर्था, वो दत्तात्रेय का एक अवतार है। वो अक्कलकोट में, महाराष्ट्र अक्कलकोट में रहते हैं। वो स्वामी समर्था बोलते हैं। मतलब वो हम भी ऐसा समर्थ होना है। हम भी दक्षिणा, हमारा मन भी ऐसा दक्षता से हम भी होना है। इसको इसलिए बोलते दक्षिणा आराध्य, मतलब ऐसा समर्थ वाले इसको आराधना करते हैं। मतलब उसको मानते हैं। ये माँ को मान के, ये माँ को हम अर्चना करना है, माँ को उपासना करना है, ऐसा मन पे आते हैं। किसका मन पे आते हैं? और समर्थवंत वो होते हैं ना, उसका वो कौन दक्षता उसका मन पे होते हैं, उसका मन पे वो माँ का आराधना करने के लिए उसका मन पे आते हैं। इसलिए वो दक्षिणा आराध्य, मतलब दक्षिणाराध्य मतलब ऐसा समर्थ वाले माँ को आराध्य करते हैं। ऐसा धीरा धीरे समझता, कैसे धैर्यवंत इसका आराधना करते हैं। वीर गोष्ठी प्रिया ऐसा ये एक नाम है। ऐसा उसका मन पे वो होना चाहिए। वो उपासना करते हैं ऐसा वाले। वो शुद्ध तत्व से, समर्थ से इसको आराधना करना है। हमारा मन भी कैसा होना है? शुद्ध होना है, समर्थनीय होना है। मतलब आप देख लीजिए, हम कोई पकाने के लिए कुछ चीज, हम चावल या सब्जी पकाने के लिए क्या करते हैं? हम पात्र को इतना शुद्धि से इसको धो लेते हैं ना। ऐसा हमारा मन को भी ऐसा धोना है। मतलब हमारा मन भी शुद्धि करना है। ऐसा शुद्धि करने के लिए हमको क्या चाहिए? सत्सांगत्य चाहिए। वो सत्सांगत्य से ही हमारा मन शुद्धि होते हैं। इसको बोलते चित्त शुद्धि। वो चित्त शुद्धि से हम माँ को आराधना करना है, भगवान को आराधना करना है। वो उपासना का लक्षण क्या है? समर्थता। वो ही समर्थता दक्षिणा है। इसको बोलते दक्षिणा बोलते हैं। सभी भक्त वो समर्थता से वो आराधना कर रहे हैं। नहीं है ना? कुछ लोग करते हैं, उसका चित्त शुद्धि नहीं होते। वो क्या समझते हैं? ये आराधना करते तो संपदा, भौतिक संपदा के लिए, कुछ इच्छाओं के लिए करते हैं। मतलब वो चित्त शुद्धि से नहीं करें। हमारा अंदर क्या होना चाहिए? चित्त शुद्धि। माँ के बिना कोई नहीं है, भगवान के बिना कोई नहीं है। वो भगवान की हमारा माता पिता है, भगवान ही हमारा सखा है, भगवान की सब कुछ है। ऐसा चित्त शुद्धि हमारा मन से आना चाहिए। ऐसा इसको पकड़ना है। वो पकड़ने के लिए हम हमारा अंदर से वो धीर, मतलब
हमारा अंदर से धैर्य चाहिए, समर्थता चाहिए। मतलब हम ज्यादा तक बोलते हैं लोग, वो इतना बचपन से क्यों भगवान को पकड़ लिया, सन्यास में जाते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं। वो गलत बात है, मतलब ऐसा ही बोलते। तब तब भी हमारा मन स्थिर चित्त में होना चाहिए। और वो बोलते हैं वो अभी से क्यों कर रहे हैं, अभी से क्यों ऐसा जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अब सुना होगा। उसको डर लगते हैं, ऐसा करने से वो घर छोड़ के जाते हैं, वो सन्यास लेते हैं, ऐसा मन पे डर आता। हम भी क्या करते हैं, इच्छा इच्छा पूरा करने के लिए ही हम आराधना करते हैं, ऐसा नहीं। वो आराधना करने के लिए हमारा अंदर से समर्थता होना चाहिए। वो समर्थता कैसे आते हैं, वो समर्थता हम धर्म पकड़ने से ही आते हैं, सत्य पकड़ने से ही आते हैं। सत्य को हम मानना है। वो सत्य क्या है, वो भगवान ही शाश्वत है, वो सत्य हम जानना है। वो कुछ भी नहीं। वो हमारे पास संपदा आते हैं, भौतिक संपदा, इतना गोल्ड आते हैं, धन आते हैं, घर आते हैं। वो हम ये मानना है, वो सत्य को जानना है, वो अशाश्वत है। मगर हमारा ऊपर माया आके हम मानते हैं वो शाश्वत है करके इसको हम पकड़ते हैं। इसके लिए हमको धैर्य चाहिए, वो अशाश्वत है। ऐसा वैराग्य आने के लिए हमको हमारा अंदर वो समर्थता होना चाहिए। मतलब वो उसको बोलते हैं दक्षिणा बोलते हैं। वो समर्थता हमारा अंदर से आना चाहिए। मतलब वो वैराग्य, मतलब वो वैराग्य ज्यादा तक बोलते हैं, ज्यादा लोग वो वैराग्य से होते तो ऐसा होता है। मगर वैराग्य होते तो भी हम संसार में रह के अच्छे से ये कर सकते हैं, समर्थता से कर सकते हैं। संसार को भी हम इतना अच्छे से समर्थता से कर सकते हैं। मतलब तब हम इसमें नहीं रह के कैसे करना है, संसार में कैसे हम संसार में रह के भी हम संसार में नहीं रहना है, ये कैसे हो जाते हैं, बता दीजिए। हम संसार में रहना है मगर संसार हमारा अंदर नहीं रहना है। कर्म करके फल की आशा नहीं रखनी है ना, तभी हाँ, तभी हो। वो कर्म त्याग करना है। वही भगवत गीता में भी यही बोलते हैं ना, कर्म त्याग करना है। कर्म त्याग करने के लिए कैसे कर्म त्याग करने है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण हो करते तो वो भगवान, वो कर्म वो भगवान ले लेते हैं। वही हम वो कर्म को हम भगवान पे छोड़ना है। मतलब हमको कुछ कर्म करके हमको पुण्य चाहिए, वो पुण्य भी हमको नहीं चाहिए, पाप भी। मतलब हाँ, इसलिए हम निरंतर वो भगवान का नाम स्मरण हमारा मन से करते तो भगवान हमसे अच्छे कर्म ही करवा देते हैं। नहीं तो हमारा हम नहीं चाहते तो भी हम बुरा करते हैं। ये होना चाहिए। इसलिए हमको निरंतर नाम स्मरण करना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं। इसलिए माँ को बोलते हैं यज्ञ स्वरूपिणी। मतलब हम निरंतर पूजा यज्ञ ये करते हैं। वो यज्ञ कहाँ होना है, हमारा अंतर याग बोलते हैं ना, हमारा अंतर यज्ञ हमारा मन पे होना चाहिए। इसलिए वो यज्ञ स्वरूपिणी है, वो यज्ञ हमारा अंदर से होना चाहिए। वही अभी ये समझ में आ गया ना। दक्षिणा, दक्षिणाराध्या, वो दक्षिणा, वो दक्षता कैसे होना है, वो समर्थता भक्ति से होना है, प्रेम से होना है, वो समर्थता। वो दक्षा कैसे, वो हमारा अंदर से वो दक्षता कैसे आते हैं, वो दीक्षा से आते हैं। वो दीक्षा बन के हम
वो करते तो वो हमारा अंदर से वो ही दीक्षा हमारा अंदर दक्ष बन जाते हैं। यही दक्षिण अदक्षिण आराध्य। अदक्षिणा मतलब वो समर्थता हम पे नहीं होते तो भी माँ का नामस्मरण करते 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 हम वो अदक्षिणा से दक्षिण बन सकते हैं। मतलब हमारा अंदर वो समर्थता आ जाते है। हम इतना मूर्ख है, इतना हमारा अंदर से वो समर्थता नहीं है, मगर माँ को शरण करते हैं तो क्या होते हैं, हम दक्ष बनते हैं, हमारा अंदर से वो दक्षता आ जाते हैं। हम वो दक्षिणा का रूप हम बन सकते हैं। तब हम माँ का शरण पकड़ते तो इसलिए माँ का नाम स्मरण हम हमेशा सदा नाम स्मरण करना ही चाहिए। यही दक्षिणा दक्षिणाराध्य। और दरस्मेर मुखाम्बुज, दरस्मेर मुखाम्बुज माँ का फेस कैसे होते हैं, वो सुमुख मतलब वो हमेशा उसके मुख में वो दरहास होते हैं। वही दरस्मेर मुखाम्बुज मतलब वो उसका वो बोलते हैं ना, वो हसमुख है। ऐसा हमेशा हमेशा वो हसमुख है। हम भी माँ का आराधना करके करके हम भी ऐसा होना चाहिए। हमारा मुख देखे तो कोई हमारा मुख देखे तो हाँ ये उसका मुख का भी देखो ऐसा होता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम हमेशा हमारा माँ कैसे वो खुद ही दरस्मेर मुख से होते हैं, हम भी ऐसा ऐसा मुख से होना है। उसका उसका बोलते सुमुख बोलते हैं। किसी का चेहरा हम देखे तो सुमुख जैसा वो हसमुख से हमको दिखते हैं ना, तब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो किसी का चेहरा देखे तो उससे हमको बात करने के लिए भी इष्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ कैसे ऐसा होते हैं, उसको बोलते हैं मंदस्मिता। मंदस्मिता बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। वही दरस्मेर मुखाम्बुजा। वो माँ वो आप देख सकते हैं काव्य कंठ गणपति मुनि के बारे में आप सुना है। वो रमण महर्षि के पास रहते थे। वो इतना वो पंडित है, वो इतना साधक है। वो काव्य कंठ रमण महर्षि इतना वो साधना किया, वो भी उतना साधना किया है। उसके पास रहते थे रमण महर्षि, उसको बोलते नायना बोलते थे। नायना मतलब पिता। वो नायना नायना बोलते थे वो काव्यकंठ महामुनि को। वो काव्यकंठ गणपति मुनि बोलते। वो उमा सहस्र लिखा है माँ के बारे में। वो उमा सहस्र लिखे, वो उमा वो पूरा 1000 वो उमा सहस्र माँ खुद ही उसको बताते तो वो लिखा है। वो ऐसा माँ इसको दर्शन दिया है काव्यकंठ गणपति मुनि को। ऐसा वो उमा सहस्र लिखे हैं। वो उमा सहस्र में शत नाम मतलब वो 100 नाम पूरा वो दरस्मेर मंदस्मित मतलब वो हंसने के लिए उसमें ही लिखा है। वो माँ कैसे माँ माँ का मुख कैसे होते हैं, वो कैसे उसका दरहास कैसे होते हैं, वो उसका अस्मिता मतलब वो माँ कैसे हंसते हैं, ऐसे इसके बारे में ही 100 नाम लिखा है वो उमा सहस्र नाम में। इसलिए उसको बोलते प्रसन्नता। कैसे वो हसमुख होते तो उसका प्रसन्नता इतना होते हैं। मैं वो नंदिनी ने बोलते थे प्रसन्न लक्ष्मी के बारे में। वो बचपन से इतना हसमुख है, उसका नाम प्रसन्न लक्ष्मी ऐसे इसका आ, आ, वो सुटेबल है ऐसा बोलते थे वो नंदिनी ने, क्योंकि नंदिनी का वो बचपन का फ्रेंड है ना। वो उसका माँ भी ऐसा बोलते थे, उसका हंसना इतना सुंदर होते ऐसा बोलते थे। वो नंदिनी ऐसा बताते हैं वो प्रसन्न लक्ष्मी के बारे में ऐसा। हम भी ऐसा हमारा अंदर से हम इतना शांत चित्त से होते हैं। वो बाहर दिखते हैं। वो बोलते हैं ना हमारा फेस ही हमारा इंडेक्स बोलते हैं ना ऐसा।
वो ऐसा हम वो, हमारा भाव हमारा अंदर से कैसे होते हैं वो हमारा फेस में दिखते हैं। इसलिए हम अंदर से हम शांत चित्त से होना है। पहले हमको वो नाम रखते हैं ना, हमारा पेरेंट्स ने हमारा हमको नाम रखते हैं ना, वो नाम इतना अच्छे से रखते थे। अभी क्या हो गया, मॉडर्न नाम रखना है ऐसा सोच के वो नाम का अर्थ भी नहीं हो रहे। मतलब मैं देखा है लिप्सिका, एक मैं देखा है इधर एक लड़की का नाम लिप्सिका है, ऐसा नाम रख रहे हैं। मतलब वो नाम का अर्थ भी होना चाहिए, मॉडर्न होना है मगर वो अर्थ भी होना है ना। अभी ज्यादा तक बच्चे और पेरेंट्स समझ रहे वो नाम रखने के लिए इतना मॉडर्न होना है, मगर उसका अर्थ भी होना है ना। अ, अभी वो अर्चना नाम हम लेके तो वो अर्चना मतलब कभी भगवान का अर्चना करना है, ऐसा ऐसा अच्छे मीनिंग है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। सोनाली मतलब वो स्वर्ण है, गोल्ड है। गोल्ड कैसे शुद्ध होते हैं, ऐसा शुद्ध तत्व में रहना है। और निमिषा है, वो निमिष निमिष काल बोलते, मतलब हमारा मन पे होना है ये पूरा अशाश्वत है, वो निमिष वो चले जाते हैं। मतलब वो क्षण क्षण में एक क्षण अशाश्वत है, और उसको पकड़ना है। वो हम पकड़ के वो निमिष को पकड़ के एक एक निमिष को पकड़ के साधना करना है, ये अर्थ होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा से हम इतना प्रतिभा से हमारा अंदर से वो प्रतिभा का नाम भी समर्थता है। वो भी एफिशिएंसी समर्थता, वो उसका अर्थ भी दक्षता और ऐसा नाम आते हैं। ये इसका नाम वो अर्थ भी, मतलब हम हमेशा वो समर्थता से ये पकड़ के हम साधना करना है, ऐसा हम अन्वय करना है हमारा नाम को। मेरा नाम अरविंद है, मुझको लगता है अरविंद बाला। मेरा फादर ने इतना अच्छा नाम रखा है अरविंदा, मतलब लोटस पद्म है। वो पंख में रहते ही, वो मड में रहते ही वो मड उसको नहीं छूते हैं। ऐसा मैं भी संसार में रह के भी वो संसार से हम नहीं छू सकते, ऐसा साधना करना है। वो कैसे शुद्ध में होता है ऐसा। बाला मतलब वो चाइल्ड, वो तत्व होते हैं ना, बाला तत्व मतलब वो बचपन पे कैसे शुद्ध तत्व पे होते हैं, हमेशा ये तत्व पे होना है। ऐसा हमारा हमारा नाम को हमारा पेरेंट्स रखे तो वो नाम को हम प्रेम करना है। वो नाम जैसे वो अर्थ कैसे होता है ऐसा हम बनना है। हमारा नाम को हम प्रेम करना है, प्यार करना है, तब ऐसा हम बन जाते हैं। ऐसा नाम हमारा पेरेंट्स रखा है। ऐसा ऐसा आनंद भाव से, वो प्रसन्नता से, वो ज्ञान भाव से वो हंसना ऐसा होना है, ऐसा हंसमुख होना है हमारा। तब हमारा अंदर से हम क्या होते हैं ऐसा ही हमारा फेज में ही आते हैं। वही दरस मेर मुख अंबुजा। अंबुजा मतलब क्या है, पद्म। पद्म को अंबुजा बोलते, क्यों बोलते हैं? अंबु मतलब जल, वो जल में आते हैं ना वो। वाटर लिली और लोटस वो सभी कहाँ से आते हैं? जल से आ जाते हैं। जा मतलब जन्म, बर्थ। और कैसे इसका बर्थ हो गया? अंबुजा मतलब अंबुजासना ऐसा बोलते हैं ना। वो कैसे दरस मेर मुखाम्बुजा, पद्म कैसे विकसित होते हैं, ऐसा हमारा मुख भी ऐसा हंसना से ऐसा विकसित होना है। हम हंसते तो हमारा मुख है कैसे दिखते हैं? हाँ, वो विकसित पद्म जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखना चाहिए। हाँ, वो माँ का मुंह ऐसा होता है। हम भी माँ का आराधना करके हमारा मुख भी ऐसा होना चाहिए। वो माँ को आराधना करते करते हम भी माँ जैसे बन जाते हैं। मतलब माँ पे कैसा गुण होते, वो गुण हमारा अंदर से
डेवलप हो जाते हैं, तब हम प्रसन्न मुक्त हो जाते हैं। वो धरा मतलब प्रसन्न मुक्त ऐसा हो। धरा स्मेर मुखाम्बुजा ऐसा होना है। अंबुजा मतलब वो अम्बुधी बोलते हैं, समुंदर को भी अम्बुधी बोलते हैं। अम्बुधी मतलब वो जल से ही वो पैदा होते हैं ना, वो पद्म, इसलिए इसको अंबुजा बोलते हैं, जलजा भी बोलते हैं, पद्मजा, ये सभी ऐसा होते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया ना? कुछ डाउट से? अभी ये समझ में आ गया ना? यस माँ, यस। इसलिए हम माँ को उधर अरुणाचलम में एक टेम्पल है, राजराजेश्वरी टेम्पल, प्रसन्न लक्ष्मी जी भी आ गया। वो टेम्पल में वो माँ का वो फेस होते इतना हंसमुख है। वो शिल्पी ने कैसे ये इसको बना दिया, ये हम देखे तो रियली वो हंस रहे हैं ऐसा होते है उसका मुख, वो हंसमुख है। इतना माँ वो तब ऐसा हम भी माँ को आराधना करके हमारा अंदर से वो शांत होते हैं ना, तब हमारा मुख भी ऐसा हंसमुख हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए हम क्या करना चाहिए? सदगोष्ठी मतलब सत्संग होना चाहिए, तभी हमारा अंदर से वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है, अज्ञान मिटते जाते हैं। तब पूरा अज्ञान मिटते हैं, तब हम मोक्ष मुक्ति, हमको मुक्ति आ जाते हैं। तब हमको शाश्वत आनंद के रूप में हो जाते हैं। वो माँ खुद ही शाश्वत आनंद रूपी है। माँ का आराधना करते तो हम भी ऐसे शाश्वत आनंद रूपी हो जाते हैं। ये सिंपल है तो सिंपल है, हम पकड़ना नहीं पकड़ना, हम पूरा वो माँ का शरण पकड़ के पूरा माँ के ऊपर ऊपर रखे तो क्या होता है, हमारा अंदर दुख मिटते है। हम पकड़ते तो हम खुद ही कर रहे ऐसा करते तो क्या होते है, हमारा अंदर से दुख बढ़ते है। ये सिंपल या सिंपल है तो वो सिंपल है। ये हम सोनाली जी आप बता सकते हैं आज का थोड़ा आप क्या समझ लिया है? आप आपको कितना समझ में आ गया वो उतना ही आप बता दीजिए, आपको क्या समझ में आ गया? दक्षिणा दक्षिणाराध्य दरस्मेर मुखामुजा। दक्षिणा, दक्षिणा मतलब समर्थता, पूरा समर्थता माँ की रूप है। समर्थता, माँ समर्थता का रूप है। शिव जी दक्षिणामूर्ति, हम लोग शिव जी को कहते हैं। माँ दक्षिणामूर्ति रूपिणी, माँ की साधना करते करते हमें भी समर्थता आती है, हम ज्ञान प्राप्त होती है हमें। माँ और शिव जी परम गुरु है। माँ की और शिव जी दक्षिणामूर्ति परम गुरु माना जाता है शिव जी को। दक्षिणाराधा ऐसे समर्थता के साथ धैर्य और प्रेम से माँ की भक्ति से माँ की आराधना करना है। तब हमें असली ज्ञान वैराग्य आती है। ये तरस मेरा मुखाम्बुजा, माँ की जो मुंह है, चेहरा है, वो हमेशा हंसमुख है। अब हमेशा माँ की सुमुख, माँ की मुख पॉजिटिव एनर्जी भाई माँ के मुख से आते हैं।
मंद स्मित, हल्का मुस्कुराते हैं माँ। पद्म, अंबुजा, पद्म जल में पद्म होते हैं तभी उसको अंबुजा कहते हैं। पद्म जैसे खिलते हैं, ऐसे माँ की चेहरा मुस्कुराते हैं। हम माँ की साधना करने से हमारे अंदर से अज्ञान और अंधकार मिटते हैं, तो हमारे मुंह भी ऐसे प्रसन्न रहते हैं, हमेशा अंदर का दुख मिट जाते हैं, हमारे चेहरा भी ऐसे माँ की तरह हमेशा खिलते रहते हैं। इतना ही समझ में आया मैडम, अच्छा से और देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, प्रतिभा जी आप बता दीजिए। हाँ हाँ, ये मैम मैं आज बिजी हूँ मैम, हमारे यहाँ थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं, इसीलिए सॉरी मैम। आज ग्रुप में मैं दक्षिणामूर्ति का फोटो में भेजेगी। अर्चना जी आप बता दीजिए कुछ वर्ड्स, आप क्या समझ गए? हाँ मैम, ये दक्षिणाराध्या वाला मीनिंग तो ये बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आपने बताया कि दक्षिणा मूर्ति है, तो वो एक अपने सबसे पहले आदि गुरु हैं, उन्होंने ही सप्तऋषि को ज्ञान दिया और उसके बाद में आगे वो सप्तऋषि के थ्रू हमको ज्ञान मिला। तो जैसे माँ जो है, माँ के पास में वो प्रतिभा, टैलेंट, पावर है, जिसकी वजह से वो दक्षिणा रूपिणी है, या उनका जो उनकी जो आपने क्या तो शब्द यूज किया था, प्रभाव। तो आपने फिर एक चीज और बोली थी कि अगर घर में दक्षिणामूर्ति की फोटो को दक्षिण में फेस करके रखो, तो उससे हम हाँ, वो उनकी दक्षिण में उनका रखना अनुग्रह। है, वो दक्षिण देखना है। फिर से बोलिए। उत्तर से वो दक्षिण देखते हैं, उत्तर में हम फोटो रखे तो वो दक्षिण देखते हैं, ठीक और है। इसलिए इसको दक्षिण, हाँ, हाँ, वो ऐसे दक्षिण देखना है। दक्षिणामूर्ति तो दक्षिण की तरफ तब फेस वो करते दक्षिण हुए। में क्या है, वो दक्षिण है, यमस्थान बोलते हैं ना दक्षिण दिशा को। वो तब क्या होते हैं, हम वो उत्तर दिशा में उसको फोटो रखे, वो उसका मुख दक्षिण दिशा को देखते हैं ना, तब वो यमस्थान देखते हैं हम। वो उत्तर मुख होके दक्षिण को, दक्षिणामूर्ति को देखते, तो हमारा पीछे क्या होता है, हमारा पीछे वो दक्षिण दिशा होते हैं ना, तब वो यम का वो प्रभाव होते हैं ना, हम पर नहीं हो जाते हैं, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होते, अपमृत्यु नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारा अंदर से वो आते हैं ना, तब वो उसका प्रज्ञा, उसका हमारा अंदर से वो हमको मेधस देते हैं, प्रज्ञा देते हैं, तब हम अमृतत्व में जाते हैं, मतलब कभी हम मृत्यु से नहीं पड़ते, मतलब हमको मुक्ति आते हैं, फिर हमको जन्म नहीं होता है, ऐसा हो जाते हैं वो। इसलिए दक्षिणामूर्ति को हम इतना आराधना करते हैं, सकल विद्या सकल ज्ञान संप्राप्त हो जाते हैं। वो माँ भी दक्षिणामूर्ति रूपिणी है, क्योंकि वो शिव जी का पत्नी है, और दोनों दक्षिणामूर्ति रूपिणी है, शिव जी और माँ दोनों समर्थनीय है, मतलब वो दोनों दक्षता का रूप में होते हैं, वो इसलिए दोनों दक्षिणामूर्ति रूपिणी है। हाँ, आपने ये भी कहा था कि कर्म, कि वो हमारे कर्म का फल कट जाता है, जैसे भगवत गीता में बोला हुआ है। फिर आपने तरुणादित्य पाटला में बोला था कि जैसे हमारी जो तरुण अवस्था होती है, वो सबसे हमारी लाइफ टाइम का सबसे हाईएस्ट एनर्जी, सबसे हमारा एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है उस टाइम में। तो वो टाइम में भी ऐसा नहीं है कि हमको ओल्ड एज का वेट करना है साधना करने के लिए। हम
अपनी जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल में है, अपने बाकी कर्म या बाकी जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, हमको तब अपनी हम साधना भी अगर करें तो वो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी मुझको याद आ गया वो एग्जाम्पल विवेकानंद जी को आप देख लीजिए। वो तरुण अवस्था, मतलब वो एज में ही वो इतना कुछ किया है। वो छोटे उम्र पे गए, मगर वो इतना किया है। और आदि शंकराचार्य वो भी 32 इयर्स में वो उसका देह त्याग किया है। तब वो बहुत तरुण एज है, मतलब इतना एंगेज में वो इतना किया है। मतलब वो हम कर सकते हैं वो ऐसा। हम कुछ भी वो ही टाइम पे हम इतना, क्योंकि एनर्जी लेवल ज्यादा होते हैं। वो ऐसा वो तेज में होते हैं, इतना एक्टिव में होते हैं ना, तब करना है। हम वो वेट करना नहीं है। हम इसलिए हम बाल्यावस्था में इसके लिए हमको वो पुनादि बोलते हैं ना, वो बेस होना चाहिए। मतलब वो बाल्यावस्था में वो हो जाते तो तब हम तरुण एज में, मतलब तरुण प्राय में हम ये कर सकते हैं। मगर हमारा शरीर वृद्धाप्य पे जाते हैं, तब भी हमारा मन वो एज में रुकना है। आप देख लीजिए, वो इतना ओल्ड एज पे आते तो भी कुछ लोग इतना काम करते हैं, इतने एक्टिवली करते हैं। ऐसा होना चाहिए, तब इसको तब ऐसा समर्थता में होना चाहिए। इसलिए तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणा राज्य तुरंत वो नाम आ गया, क्योंकि तब हम वो तरुणादित्य पाटला स्थिति में होते हैं। वो तरुणादित्य पाटल वो स्थिति में हम वो माँ को ऐसा हम ध्यान करना है। तब हमारा मनस्थिति भी ऐसा होना चाहिए, तब हमारा अंदर से वो दक्षता बढ़ते हैं। इसलिए खुद ही वो तरुणादित्य ला के बाद तुरंत वो आ गया, दक्षिणा दक्षिणा राज्य दरस मेरे मुखाम्बुज। तब हम समर्थता से होते हैं। वो समर्थता कैसे होना है? हमारा अंदर से दुख नाशन करने के लिए समर्थता ये होना है। वो होते तो हाँ, तब क्या होते हैं? दरस मेर मुखाम्बुज। तब हम माँ का चेहरा कैसे वो हसमुख होते हैं, हमारा चेहरा भी ऐसा हो जाते हैं। ऐसा समर्थता, वो समर्थता, वो दुख का नाशन करने के लिए समर्थता। तब हमको दुख नहीं होते हैं, तब क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली हंसना आते हैं ना, हंसमुख हो जाते हैं। मतलब हमारा अंदर वो प्रसन्नता बढ़ते है, शांति बढ़ते। माँ खुद ही वो दरस मेरे मुख मुझे ऐसा हम क्या क्यों उसका आराधना करते 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 हम भी ऐसा बन जाते हैं। इसको सारूप्य बोलते हैं। हम भी ऐसा हो जाते हैं, हम उसका लक्षण हम पर भी आ जाते हैं। ये होना चाहिए। ज्यादातर तो लोग समझते हैं वो भगवान अलग है, हम अलग है। नहीं, वो भगवान को रूप को हम आराधना करते करते, उपासना करते करते वही रूप लक्षण हमारा शरीर, मतलब हमारा मन पे भी आ जाते हैं, हमारा अंदर पे वो आ जाते हैं वो लक्षण। ये हम देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। शांति मंत्र। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीमात्रे नमः।
हरि ओम हरि ओम हरिओम हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरिओम मैम हरिओम और साधका श्री मात्रे नमः। हरिओम श्री मात्रे नमः।